बात नहीं है क्या? पीर साहब वो पीर साहब बात को आगे बढ़ने दे, कोई बात नहीं। वो पहली दफा की बात है। पीर साहब कोई नई बात है। पीर साहब आराम से बात करो। पीर साहब कोई नई बात नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस आस्तीन दे सप नूं अज ना नंगा करन दा टाइम आ गया। नंगा मैं दसना कर दूंगा, तुझे बांस करके छोड़ूंगा। ਉਹ ਬਾਂਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ तेरे में बांस करके जाऊंगा। ਚੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ आमिर भाई ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ पीर साहब एक पीर साहब एक मिनट। ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ खामोश हो जाए। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ पीर साहब आप खामोश हो जाए। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ पहले मैंने ਇਹਨੂੰ 10 ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ पहले मैंने ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ रिकॉर्डिंग है ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਦਵੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਦੱਸ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਬਰ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਲਈ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੂੰ ਜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਤਾ ਦਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ। ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, किस वजह तो? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। आप एक एक होके बात करें प्लीज। देखें उनको देखिए जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं शार्प शूटर इसने ये ऐलान किया या नहीं किया? कौन सा ऐलान? बस होगी ना गल हुन जवाब ले लेना। इसने ये कहा कि मुझे इस औरत का पता दे, नहीं इस औरत के बारे में मुझे बताए जो इसको जाती जानता हो, इसका घर बार जानता हो, जो इसको जानता हो, उसका पता दे। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आमिर नजीर साहब से खफकी है इनके सामने, ये सामने बैठे, इनसे पूछ लें। इन्होंने ये पूछा था कि ये कौन है, यानी कि कोई ये रियल में कोई हकीकत है बंदा या नहीं है। टिक टॉक पे नहीं पता होता कौन है कौन नहीं है। इन्होंने उस सेंस में पूछा था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे एड्रेस तो मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो मैंने कहा था कि हाँ मुझे पता है, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ। इन्होंने ये पूछा था कि कोई टिक टॉक पे लोग होते हैं क्या, इसको कुछ जानता भी है कि औरत कौन है कौन नहीं है, तो मैंने कहा था हाँ मैं जानता हूँ, मुझे एड्रेस का पता है सारा। इन्होंने उस सेंस में पूछा था, ये नहीं कहा था कि मैं जा रहा हूँ कनाडा, मुझे एड्रेस तो। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰ? हाँ जी। ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? अब वो चली गई हैं। ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। अपनी बराड़ ਤੇ बदमाशी हो सकती है ना, सिर्फ अपनी बराड़ ਤੇ नीचे बैठो मेरे साथ बात करनी है, ओए फलाना कुत्ता फलाना बिल्ला गालियां दे के अपनी बराड़ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ इंसाफ नाल अदल नाल गल करनगे नहीं कर सकणगे, एक मिनट नहीं कड्डणगे। आओ मैं दसां मैं ਇਹਦਾ फोन नंबर लैके क्यों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿल्ला ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਹਦੀ ਝਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਕਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਪੇ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਔਰਤ ਕਾਰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਸ਼ ਮਲਕ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਕਿਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਟਸਵੇ ਬਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਜਕੂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁਜਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕੋਲ ਅੰਬ ਲੈਣ ਗਈ ਸੈਂ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਐ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਵੱਕਲ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਐ? ਆਏ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਪੇ ਬੁਲਾਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਠਕ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਟੁਰ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ? ਇਸ ਗੱਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇੰਜ ਫਤਿਹ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੁਰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਾਤੇ ਵੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ। ज़िया भाई आपको उतारा किसने? एक मिनट, ज़िया भाई आपको किसने उतारा था? मुझे नहीं पता किस बंदे ने उतारा है, मुझे नीचे उतार दिया था। फिर उतारता किसी ने? कौन मॉडरेटर बनाया? खैर मुझे चेक करना है, मैं ऑल मॉडरेटर रिमूव करता हूँ, एक मिनट। ठीक, ये रिमूव नहीं किए ऑल मॉडरेटर। सो इनू बुलाओ मेरे सामने ते आके दसे कि इन्हें मैनू तस्वीरां क्यों भेजियां सन। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੱਲ, ਤੇ ਘੱਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਘੱਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ? ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫੇਵਰੇਟ 49 ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਆਮਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਲੀਜ਼ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ, आपने एक दफा कुरान हाथ मुझे पड़े उतार तो दिया, ये गल इस वजह से उतारना नहीं है। अगर पूछना जरा। बदतमीजी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा इनको। कुरान हाथ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫੇਵਰੇਟ 49 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਗਿਆ? ऐसा नहीं कि जो भी इनके मुंह में आएगा बकवास करेगा हम सुन लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ हाँ ਕਰਾਂਗੇ। मुका लो, बाद में कर देंगे। ਇਹ ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਹਾਂ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, रसूल को अपने पास ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। अभी लगा मैं ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਢ। शर्म नहीं आता है? ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਕੱਢ रसूल ਗਾਲਾਂ, को बिठाते हो, ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ। वो तेरे चेलों ਤੇਰਾ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਟਰ ਉਬਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लगा कुत्ते, मैं लगा कुत्ते। शाबाश शाबाश, ए तेरी दाढ़ी, ए तू आलम दीन है, ए तेरी तलीम है। मैंने कब कहा मैं आलम दीन हूं? ए तेरा इल्म है, आपको मुजाहिद ए तेरा इल्म है, ए तेरा आलम दीन होना है। और 10 लोगों को शक्ल भी बहा, शक्ल भी बहा, और ऊंचे बोल कुत्ते। शक्ल भी बहा। क्या शादी करानी है मेरी? हाँ हाँ कराने तेरी शादी। किससे शादी करानी है?
अपने नाल करांगा, मेरे नाल करांगा। अपने एक बहन को ये कहते हो, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ आ के बोल। थूकना नहीं चाहता, तेरे सामने नहीं चाहता, तो है कौन? थूकना नहीं तू एक चाहता, कुत्ता है, तू एक कौन कुत्ता को है। थूकना नहीं चाहता, ना ना समझ रहा है? मरना नहीं, सप खा के मरना नहीं मेरा भरा। आ जा मेरा भरा, नज़ीर, तू एक भाई है मेरा, कुछ भी नहीं ये है। भाई है मेरा, तू फितना कर रहा है, ये भाई है मेरा, ये गाली फितना देगा कर मुझे, रहा है चल मुसलमानों गाली दे, को। गाली दे मुझे, गाली दे, वो लोग जो गाली दे मुझे, भाई है मेरा, गाली देगा मेरा भाई, मुझे गाली देगा, और ऊंचा बोल, गाली दे ना, मेरा भाई है, मेरा भाई है, गाली दे। शात में रसूल थले और शेख हादी ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ बताना तुम्हें मसला क्या है आमर नजीर से ज़िया रसूल से, अब बता मसला बता। ज़िया भाई ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, अपनी बराड़ पे भी निकाल दो। मैं कल्ला ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ, मैं कल्ला ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ मर्दों लांगा। के सामने आके बता मसला क्या है तेरा। बताता हूँ, हमारी खामोशी को आमिर तुमने नज़ीर- कमजोरी समझा हमारी। मैं तो तुमको पीड़ा भी नहीं ਕੱਟ ਗਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, दो बार गाली दे, तुम्हारी गाली दे। इल्मियत का पोल जो है ना खोला है तो तुम्हें आग लग गई ऊपर नीचे से, ये मसला है तेरा। मैंने मर्दाइयों को साथ बिठा के गाली दे, क्या हुआ है इल्मी गालियां निकालनी है तो वो अपनी औरत बात कार्ड बताओ। खेलने वाले, औरत कार्ड खेलने वाले मिर्जाइयों को बुला के उनके साथ मिल के गाली दो, बुलाओ बुलाओ। कौन मेरी बहन है, कौन मेरी बहन है? वो तो मिर्जाइयां दी भरजाई है, वो तो मिर्जाइयां दी भरजाई मेरी कदी बहन है। बहन को ये कहते हो ओ मिर्जाई, ओ इदरीस कादियानी दे निकाह च, ओ इदरीस कादियानी दे निकाह च मेरी ओ बहन नहीं, तेरी बहन होगी, ओ तेरी बहन होगी। तू औरत कार्ड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਆਓ, लेकिन मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है, 7 बिल्कुल साल का तू कहता है मुझे तस्वीरें छुट्टी है, नहीं भेजिया उन्हें, आशिक हो गया था वो, नहीं भेजिया उन्हें तस्वीरें, पूछो नो, पूछ अपनी बहन नो, तस्वीरें कलियां सु इसलिए नहीं भेजी भेजी हैं, इसलिए भेजी है कि तूने फोन किया है, क्या मसला है, उसने तुम्हें वो तमाम चीजें फराहम की है कुत्ते। ओ गल सुन, जेड़ी गलबात फोन कीता है, तस्वीरां दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ तल्लक है? कितनी है कितना फोन तो किया था, फोन तो किया था अलीशर गुज्जर के लिए, हाँ हाँ बताता हूँ मैं, फोन तो किया था अलीशर गुज्जर के लिए जी, उसके साथ इसकी तस्वीरों का क्या लेना देना? इसने अपनी तस्वीरें मुझे क्यों भेजी हैं? ये उसने गाड़ी चला रही है विदाउट रूफ, उसको मैंने क्या करना है उस तस्वीर को मिसाल के तौर पर? अच्छा मैं बता देता हूँ, अब सुन लीजिए, आपने उनके फोन को नंबर कहाँ से ढूंढ लिया आज और शार्प क्यों शूटर को ढूंढ लिया शार्प और क्यों शूटर से उनसे लिया। इसका जवाब पहले दिया मैंने, क्यों दिया बता, मुझे बताओ। बता, मेरे को लगा सुनो ये मैं जो बंदा उससे बात करता है, मुझे खुद उसने अपना नंबर इसके टिकटॉक के इनबॉक्स में सेंड किया, मैंने मांगा भी नहीं। आमिर नहीं मैं जवाब, तो हर बंदे के पास है उसका नंबर, हर बंदे को दे देते। मैं बताता हूँ जवाब, खैर म्यूट लगा। इसलिए लिया था, शार्प शूटर से मैंने नंबर लिया था, और इसलिए लिया था क्योंकि ये मिर्जाइयों की बराड़ पर जाकर कह रही थी कि अली शेर गुज्जर ने मेरे साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, और ये खत्म नबूवत के मुजाहिद बने फिरते हैं, ये मुझे इंसाफ नहीं दे रहे। और मिर्जाई भी कह रहे थे हाय 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 हाय, औरत के साथ जुल्म हो गया, हवा की बेटी के साथ जुल्म हो गया, देखो इंसाफ नहीं क्यों कर रहा खत्म नबूवत के मुजाहिद। इसलिए मैंने इसको कहा था, पहला मैसेज मैं अभी खोल के दिखा देता हूं, पहला मैसेज मैंने ये किया था, आओ हमारी बराड़ पर अली शेर गुज्जर वाला मसला हमें बयान करो, अगर अली शेर गुज्जर ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है हम इंसाफ करेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे, उसके मुंह पर उसकी ज्यादती माल देंगे अगर उसने तुम्हारे साथ किसी किस्म का जुल्म या ज्यादती की है, पैसे लिए हैं या इखलाकी तौर पर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती की है, आओ हमारी बराड़ पर। इसने कहा मुझे इंसाफ अल्लाह देगा, ये मुझे जवाब दिया। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें इंसाफ दूं अपनी बराड़ पर, मिर्जाइयों की बराड़ पर तुम्हें आके इंसाफ मैंने देना है, हमारी बराड़ पे आओ। कहती मुझे इंसाफ अल्लाह देगा। तो मैंने कहा अगर अल्लाह नहीं देना था तो मिर्जाइयों की बराड़ पर क्या लेने गई थी? वहां जाकर इंसाफ क्यों भाल रही हो, वहां क्यों इंसाफ मांग रही हो? इसका जवाब नहीं है इसके पास। ये थी वो पूरी बात। हाँ जी, दो गाली। अभी आपने ये कहा क्योंकि वो मिर्जाइयों के ब्रोड पे गई हुई थी और वो अपना कहानी जो भी उनके साथ जुल्म और ज्यादती है वहां शोर शराबा कर रही थी कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अब आपने सोचा कि आप इंसाफ दे देंगे, यही सोचा ना आपने। फिर आपने नंबर ले लिया और आपने फोन किया, उन्होंने आपसे गुफ्तगू की और वो तस्वीरें और वो प्रूफ आपको इसलिए दे दिए। आप अपने ब्रोड पे बैठ कर ये कहते हैं कि मुझे तस्वीरें दी। अब आप खामोश रहिए ना, आप खामोश रहिए ना, आप खामोश रहिए, मेरी बात सुनिए, नाजायज फायदा मत कीजिए। बोलने। अब आपने खुद उनसे राबता किया इंसाफ दिलाने के लिए। एक इंसान पर जब जुल्म होता है वो तो चीखता है, इधर उधर की बातें करता है, उसके उस जुल्म और इंसाफ को देखकर सीधा इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो शोर शराबा कर रही थी, आपको लगा आप जो है गए उनके पास, दयालु बनकर, अच्छी बात है,
आपने उनसे बात की, उसने वो तमाम प्रूफ आपको पेश किए। अब आप आएंगे बरोड पे, जब कोई भी मसला हो जाएगा आप आएंगे, जो बात उसको काट के पेश करेंगे, ये आपके लिए अच्छा है? उम्र के इस पड़ाव में क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि मुझे वो प्रूफ दी है? वो तो प्रूफ दिए हैं आपको, या कोई ऐसी तस्वीर दी है, या कोई ऐसी गंदी बात आपसे की है, कोई रिश्ता आपने जोड़ना चाहता था? जिस तरह से आपने गुफ्तगू की है वो एक गाली है। आपने उस चीज को गलत पेश किया, काट के पेश किया, ये आपकी गलत हरकत थी। बस ठीक। अगर आपके साथ उसने कोई ऐसी बात की, कोई रिश्ते की बात की है, तो आप बता दीजिए, हम मलामत कर देंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, वो अपनी बात खुद भी कर सकती हैं। शार्प शूटर उनको बुलाइए। आमिर नजीर जो कह रहा है, क्योंकि वो जानता है और अल्लाह जानता है, और आमिर नजीर जानता है, हमें नहीं मालूम। बुलाओ उनको आप बुलाइए और उनसे अच्छी बात कराइए। हाँ हाँ जी, खुद भागिए यहाँ बुलाइए। अच्छा यहाँ तक आपने बात को गोल करने की कोशिश की है कि वो आई थी। बात शेयर करें, मुझे उन्होंने व्हाट्सएप से हाँ कॉल कर लें, बल्कि मैंने पहले भी बात बयान की है। आमिर नजीर, एक मिनट, आमिर नजीर मैं उनको बुला लेता हूँ, एक मिनट। बुलाओ। हाँ, इस तरह आमिर भाई आप सही बात कर रहे हैं। आप पीर साहब आप भी आराम से बात करें, जो कंफ्यूजन आपस में वो दूर करें। और कंफ्यूजन किसी किस्म का नहीं है, कंफ्यूजन किसी किस्म का नहीं है। ठीक है आमिर भाई, बस आप बात करें ना। जो ये हैं इनकी असलियत सामने आ गई, लेकिन जो हमने सबूत देना है वो हम सामने देते हैं। वहाँ गालियां देते हैं ब्राड लगा के लोगों जी को। जी, अब बात कीजिए आमिर नजीर, बात कीजिए। हाँ जी, मैं आया हाँ जी, हूं, मैंने सुनो। उनको कहा है आने के लिए। हाँ जी सुने, मैंने ये कहा कि बुलाया तो था अली शेर गुजर के लिए, अगर वो आना चाहती थी ठीक, नहीं आना चाहती थी ना आए। व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू होगी, वो सबूत देना शुरू होगी कि देखो ये मेरे साथ अली शेर गुजर ने ज्यादती की। पर्चियां भेजनी शुरू कर दी कि उसने मुझे कहा था तुर्की से शायद पैसे भेजने के लिए, तो मैंने पैसे भेजे, ये किया वो किया। मैंने कहा भाई ये अब सारी वन वे स्टोरी है ना जो आप सुना रही हैं। जब तक अली शेर गुजर सामने ना हो, इन रसीदों की, इस सारी कहानी की ना हम तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं। हो सकता है सच्ची हो सकता है झूठी हो। वो चांदनी का किस्सा, वो उसकी बहन का किस्सा, भांजी का किस्सा, भतीजी का किस्सा, मैंने कहा भाई इन बातों से मुझे क्या लेना देना है। जो ज्यादती अली शेर गुजर ने की है वो हमारे सामने बैठो, अगर उसने ज्यादती की होगी हम उसके मुंह पे मारेंगे कि तुमने ज्यादती की है खातून के साथ, क्यों की है। इस दौरान इन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी जिनका उस केस से कोई लेना देना नहीं। इसको बुलाओ अपनी बहन को और इसको कहो कुरान हाथ में पकड़कर कहे कि जो तस्वीरें इसने मुझे अपनी प्राइवेट भेजी उनके साथ अली शेर गुज्जर के केस का कोई लेना देना था। मिसाल के तौर पर एक विदाउट रूफ ये गाड़ी चला रही है, उसका अली शेर गुज्जर के केस के साथ क्या लेना देना कि अली शेर गुज्जर ने इससे पैसे मांगे या इसने उसकी कोई मदद की, उसका इससे क्या लेना देना है। अपनी तस्वीर, घर की तस्वीर, उसका इससे क्या लेना देना भाई। मैंने कहा क्या ये तस्वीरें भेज रही हैं, फिर डिलीट करना शुरू कर दी। मैंने कहा तस्वीरें डिलीट क्यों कर रही हो, कहती बस आपको दिखाने के लिए भेजी थी। क्यों भेजी मुझे तस्वीरें, मैंने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। इसलिए जिक्र किया, ये जो आपको लगता है ना गाली दी है, ये गाली इसलिए दी है कि इसने मेरे भाई को गाली दी है। इसने कहा है कि ज़िया रसूल हारा है, तारक चौहान ने गलत फैसला दिया है, ज़िया रसूल हारा है, इमरान खान जीतता है। ये उस गाली का जवाब दिया है मैंने कि इस कैलेबर की तुम औरत हो जो तुम इतना बड़ी बड़ी कर रहे हो ना, अपने आप को अक्ल कुल साबित करने की कोशिश कर रही हो, ये तुम्हारा कैलेबर है। तुमने मुझे तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी थी मेरी बगैर इजाजत के और बगैर कहे हुए, इसलिए मैंने जिक्र किया था और 8-10 महीनों बाद, साल बाद जिक्र किया था, वरना मैं कभी भी ना करता। इस नीच हरकत पर उतरना हमारे लिए मुनासिब नहीं है आप लोगों की खातिर। लेकिन जब आप हैं इस थड़ेबाज लोग, इस तरह के लोग हैं, तो आपको मजबूरन फिर जवाब देना पड़ता है, और वो दिया है। कहे आके हमारे सामने कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको तस्वीरें नहीं भेजी। कहे आके हमारे सामने कुरान पकड़ के कि मैंने फेवरेट 49 की ब्राड पे जाके कहा था जब ये गलीज औरत आपकी ब्राड पर हो तो मुझे ऊपर ना लिया करो, या फेवरेट 49 को यहां बुला लो, वो कुरान हाथ में पकड़ के दे दे गवाही, या ये दे दे, मैं माफी मांग लूंगा सबके सामने। कुरान पकड़ के हाथ में ये कह दे कि मैंने ये अल्फाज किया, या रिकॉर्डिंग पेश कर दे। रिकॉर्डिंग तो पेश नहीं कर सकती, 1.5-2 साल पहले कहा था भाई, 1.5-2 साल पहले कहा था। रिकॉर्डिंग तो अब भी उसकी होगी, मेरे ख्याल है फेवरेट 49 अपलोड करता है ब्राड पे अपनी ब्राड को। अगर ये वहां नहीं पेश कर सकती, वो रिकॉर्डिंग नहीं पेश कर सकती, कुरान हाथ में पकड़ के झूठ बोल दे। झूठ तो इसने पहले भी बोला हुआ है। ये कहती है कि इदरीस कादियानी कभी कादियानी था ही नहीं, ना वो था ना वो है। आओ इसको मेरे सामने बिठा के पूछो,
इसका शोहर कादियानी है कि नहीं है? बुलाओ उसको मेरे सामने। नहीं आएगी। अच्छा, अब बहुत लंबी हो गई बात आपकी, सब तमाम चीजों को एक साथ आप बयान मत कीजिए, एक एक। देखें, आपने जब फोन किया, उनसे बात की, उनको तो यही लगा ना कि आप इंसाफ करेंगे, और अगर उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, तस्वीर आपको इस खातिर भेजी है कि आप पर वो फिदा हो गई थी, या वो गलत औरत थी, कोई संबंध रखना चाहता था? अगर ऐसा नहीं है तो आप ये बात कैसे कर सकते हैं इस हिसाब से, जिससे ये लगे कि कोई संबंध रखना चाहता तो ये तो गाली है। रही बात, आप ये दलील दे रहे हैं कि आपके भाई के बारे में उसने गलत बोला है। भाई ये गलत बात है नहीं, आप कहते हैं गलत बात है। बात ये है कि अगर कोई मुसलमान, फैसला तो चलेगा जज का, मेरी क्या औकात है मैं कुछ भी कहूं, किसी और की क्या औकात है। एक जब फैसला होता है आमिर नज़ीर, कुछ लोग उसके हक में होते हैं, कुछ लोग अपने सवाबदीद के हिसाब से कहते नहीं गलत हुआ है, इतनी सी बात है। पप्पू ने सारा कुछ कहा, मेरी आपकी लड़ाई भी चल रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि हक उसके साथ है। भाई मुझे यही लगा कि हक उसके साथ नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि हक ज़िया के साथ नहीं दूसरे फरीक के साथ है, ये उसका मशवरा है, इस पे वो गाली देना नहीं बनता। आप ये कह दें कि भाई आपका काम ही नहीं है, आप गलत हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इतनी सी बात है। ऐसी नंगी बात एक खातून के बारे में नहीं की जा सकती, इतनी सी तो बात है, और क्या है। उसके कहने से क्या बिगड़ जाएगा कि आमिर नज़ीर ज़िया गलत हैं, हक है किसके साथ, वो तलत के साथ, क्या हो जाएगा इससे? इस्लाम बदनाम हो जाएगा या ज़िया रसूल बदनाम हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को बोलने का हक है, लोगों को बोलने का हक दीजिए। आमिर नज़ीर, ये गलत बात है। अगर आपके हक में कोई बात नहीं जा रहा, या आप समझते हैं कि ये बात उन्होंने गलत की है, गाली देना नहीं बनता है। उम्र के इस पड़ाव में आपको, ये आपकी गलती है। एक खातून को आप गाली दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके हक में नहीं बल्कि किसी और के हक में बात की है। ये कभी भी नहीं बनता। वरना आप मुझे ये बता दीजिए कि उसका वाक़ियतन जो आप बता रहे हैं, तस्वीरों के बारे में बता रहे हैं, ये तस्वीर इसलिए भेजी है, कोई गलत नीयत से भेजी है? और क्या आप समझते हैं कि कोई गलत खातून है, कोई बदकार खातून है? आप तो उसके इज्जतदारी कर रहे हैं, ये आपको ज़ेब नहीं देता। रही बात ये क्या नाम है अपना, 2 साल पहले आपने उनको गलीज कहा है, नहीं कहा है, जब तक प्रूफ सामने नहीं होगा आपकी बात तो दुरुस्त है कि हम मान नहीं सकते। वो कह रही हैं, आप कहते मैंने नहीं कहा, अब किसके हक में हम फैसला दे दें? हो सकता है कहे हो आपने, कोई शरीफ नफ्स इंसान यही कहेगा कि मुमकिन है कि कहा हो, कि मुमकिन है नहीं कहा हो। 4 आदमी कहेंगे भाई आमिर नज़ीर ऐसा नहीं कह सकता, 4 आदमी 2 आदमी कहेंगे नहीं कह सकता है। इस पे आपको गाली देना नहीं बनता कभी भी। ये आपका हक है, मुझे प्रूफ दे दो। जब प्रूफ नहीं है आपकी बात मैं नहीं मानता। बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन किसी के मुंह पर आप माइक नहीं रख सकते, किसी के ऊपर जनाब आला आप पाँव नहीं रख सकते, और ये नहीं कह सकते, उसको गाली नहीं दे सकते। और वो है एक खातून, खातून के साथ इस तरह उनका, मैंने क्या आपको मना नहीं किया था इनके बारे में? मैंने नहीं कहा था छोड़ दो, क्या ना मैं कई मर्तबा नहीं कहा है भाई आप मेरी बात मत माने, आप मत माने, लेकिन यह है कि दूसरे के बात को भी सुने, आप उसके साथ ना बैठे। कोई जाता है आप उसको जाने दीजिए। दूसरों को क्यों कहते हो, दूसरों को बदजन क्यों करते हो आमिर नज़ीर? क्या शरीयत के रूह से औरत दावत और तबलीग का काम कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है, शरीयत मना नहीं करता। हाँ, उलमा की नसीहतें हैं, उलमा की नसीहतें हैं, लेकिन वो तो शरीयत नहीं है। एक नसीहत, आप मुझे एक नसीहत करते हैं आसकानी साहब, इस रास्ते से मत जाइए, यहाँ चोरों चक्कों का रास्ता है, ये रास्ता ज्यादा महफूज है। लेकिन अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो नुकसान मुझे होगा, मैं गुनहगार तो नहीं हो जाऊंगा, शरीयत तो मैंने नहीं तोड़ी। उलमा ने कुछ नसीहतें की हैं, आप नसीहत कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात मनवा नहीं सकते और दूसरों को उसका दुश्मन नहीं बना सकते। जी
ٹھیک ہے جی. ایک تو پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ وہ تصویریں اس نے بھیجیں تو کیا اس کی نیت خراب تھی, کیا وہ آپ پر فدا ہو گئی تھی, کیا وہ آپ سے سمبند رکھنا چاہتی تھی, ان میں سے کوئی بھی لفظ میرا نہیں ہے. وہ کیا چاہتی تھی مجھے معلوم نہیں ہے. جن علماء کرام کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ علماء کرام اجازت دیتے ہیں تبلیغ کی, ان میں سے کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے گا اپنے علاوہ, کیونکہ آپ کا تو علم اب دنیا نے دیکھ لیا. کسی عالم دین سے ابھی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ ایک خاتون ہے, مسلمان ہے یا نہیں یہ بھی نہیں مجھے پتا, لیکن وہ اس نے مجھے تصویریں بھیجی ہیں بلا وجہ میرے مانگے بغیر. وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے اور مجھے وہ تصویریں بھیج رہی ہے. ان کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا ایک خاتون کو اپنی تصویریں کسی مرد کو بغیر شرعی عذر کے بھیجنی چاہیے, یا اگر اس نے بھیجی ہیں تو اچھا کیا ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ انہی علماء سے پوچھ لیجئے, مسئلہ حل ہو جائے گا. میں تو اس پر کوئی الزام نہیں لگا رہا, میں نے صرف اتنا بتایا کہ یہ حالات ہیں ان لوگوں کے کہ میرے بغیر مانگے وہ مجھے اپنی پرائیویٹ پکچریں بھیج رہی ہیں. اب سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ آ کے کہے کہ نہیں بھیجی. میں ابھی اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں جہاں بھیجی ہوئی ہیں, خود ڈیلیٹ بھی کی ہیں. تو یہ جھوٹے لوگ یہ مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے, یہ مسلمانوں کا ختم نبوت کا کام کریں گے, یہ مرزائیوں سے باتیں کریں گے اور ہمارا منہ کالا کروائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بات کرے گی, دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی تو کیا حرج ہے اس میں؟ اسی لیے میں پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جو لوگ بد کردار ہیں, جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں باتوں میں, ان کو میں پسند نہیں کرتا, ان کے کام کو میں پسند نہیں کرتا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں کسی کے کام کو پسند نہیں کرتا, وہ میرے کام کو پسند نہیں کرتا, وہ اپنے گھر میں اپنے گھر, اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں نے اگر کسی مسلمان بھائی کو یہ کہا ہو کہ اس عورت کی برات پر نہ جاؤ, یہ مسلمانوں کی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہو سکتی, اپنے بھائیوں کو اگر کہا ہو تو اس لیے کہا ہوگا, اور میں اس پر اب بھی قائم ہوں کہ ایسے لوگ مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہو سکتے, مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے. تو اچھا کہا, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. باقی رہی بات یہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بھئی پیسوں کی بات کر رہے تھے, کون سی بات تیسری بات کی؟ اچھا ایک بات انہوں نے کہی جی, وہ اس کی تصویروں کے بارے میں کون سی بات یار کر رہے تھے؟ اتنی باتیں کر دی ہیں, مکس کر دی ہیں باتیں. ہم تو مرزائیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ نے باتوں کو مکس کیا نا, میں نے پورے ایک بات کر لیں, کوئی ایک بات کر لیں, اسی لیے میں کہتا ہوں کوئی ایک بات کیجئے. ہاں ایک بات کریں, ایک ہی بات, یہ دو باتیں میں نے رکھی ہیں. مین بات پوچھ لیں کہ ان کو مین مسئلہ کیا ہے, بس. نہیں چھوڑ دیں, مسئلہ ان کا جو ہے وہ ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ رہنا چاہیے, ان کا مسئلہ دور نہیں ہونا چاہیے. ہاں تصویروں کا مسئلہ حل ہو گیا, اس نے بھیجی ہیں تصویریں مجھے, نہیں ہوا.